Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a very good question of geometry. It came as a doubt to me, so I thought of making a video on it. It's a very good question. One very important learning from this question is that अगर आपको प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री की सारी आती हैं तभी फायदा है, आधी अधूरी प्रॉपर्टीज याद करके कोई फायदा नहीं होगा. Because in one particular question only there can be 4 to 5 properties used, right? Okay, now before we discuss this question, let me tell you that if you want to receive important notifications on your WhatsApp related to different colleges and different exams, then please fill the form given below in the description. Other than that, students, links related to our WhatsApp group and Telegram group is also there in the description. Now, I would request everyone, please pause the video and give this question a try. Okay, students, I hope all of you have tried it. Let me quickly tell you the properties which we are going to use here so that it becomes easy for you to understand. मान लेते हैं एक ट्राइंगल है ABC and it is an isosceles triangle. So I hope all of you know what is an isosceles triangle. Two sides will be equal. So let's assume AB and AC are equal. So students, now I've assumed AB and AC are equal. So BC is the unequal side, है ना? BC हमारी थर्ड साइड है जो कि unequal साइड है. तो अगर हम BC पे एक मीडियन ड्रॉ करें, अगर हम BC पे मीडियन ड्रॉ करें, तो ये जो हमारा मीडियन है ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा. These two angles will also be equal. So basically AD will be the median, it will also be the perpendicular, it will also be the angle bisector. ठीक है, I hope ये सबको clear है. Second property which we are going to use here is, again if I take triangle ABC and now from vertex A if I draw a line AD, तो AD बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, AD बेस को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो भी वही होगा. जो बेस का रेशियो होगा वही ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो भी होगा. फॉर एग्जांपल लेट्स से AD डिवाइड्स BC इन द रेशियो ऑफ 1:2. तो मान लेते हैं कि BD और CD का रेशियो 1:2 है. तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स है इनका जो एरिया होगा वो भी 1:2 के रेशियो में होगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल इज 5. तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया क्या होगा, 5 का डबल हो जाएगा. सो दैट वुड बी 10. ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टी भी सबको क्लियर है. कमिंग टू दी थर्ड प्रॉपर्टी, इन अ ट्राइंगल ABC अगर हम किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दें, तो लेट्स से मैंने AB का मिड पॉइंट D ले लिया और AC का मिड पॉइंट मैंने E ले लिया. ओके, माइंड यू D एंड E आर मिड पॉइंट. तो DE को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो अब जो छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया है, जो छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया है, दैट विल बी 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल. ADE का जो एरिया होगा वो ABC का 1/4 होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो ये चीज तो सिमिलैरिटी से आ रही है, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. बस आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के 1/4 होगा. ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन. फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले. इन अ ट्राइंगल ABC M is the midpoint of AB. तो लेट्स से ये M है, M is the midpoint of AB. Further it is given N is point in the interior of triangle ABC. तो N एक पॉइंट है, लेट्स से N को हम यहां ले लेते हैं. Such that CN is the bisector of angle C. तो CN ज्वाइन कर लेते हैं, ये N है तो CN ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का. तो दिस इज N. So these two angles are equal now. Further it is given CN is perpendicular to NB. तो अगर NB को ज्वाइन कर दें तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. Okay, I hope this is clear to everyone. CN is perpendicular to NB. Now the question is what is the area of triangle BMN? तो एक काम करते हैं M और N को ज्वाइन कर देते हैं. Okay, because we have to find area of triangle BMN. So let us join M and N. ठीक है, ये हमारा पॉइंट M है. It is also given that CN is equal to 6.
तो सी एन हमारा 6 है, बी सी 10 है और ए सी 15 है। ठीक है, आई होप द given information is clear to everyone. Now students, just see here, focus on this line CN. You can see CN एंगल बाइसेक्टर भी है और CN BN के परपेंडिकुलर भी है. Now if I extend this line and let's take this point to be D. Now just focus on the triangle BCD, everyone. Focus on the triangle BCD. BCD ट्राइंगल में हम लोग देख सकते हैं एक लाइन है CN जो कि परपेंडिकुलर है और एंगल बाइसेक्टर भी है. Now because this line is perpendicular, it is also angle bisector. That means BCD will be an isosceles triangle. जो कि प्रॉपर्टी हमने शुरू में डिस्कस करी थी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी है और ये एंगल बाइसेक्टर भी है. दैट मीन्स ये मीडियन भी होगा और ये ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा. नाउ बिकॉज CN will also be the median, so ND will be equal to NB and it is an isosceles triangle. तो BC और CD आपस में बराबर हो जाएंगे, BC और CD आपस में बराबर हो जाएंगे और हमें BC की लेंथ पता है 10 है, तो CD की लेंथ भी 10 हो जाएगी. तो एक काम करते हैं, इस 15 को हटा देते हैं क्योंकि 15 कंप्लीट लेंथ है AC. ओके, 15 इज द कंप्लीट लेंथ AC. तो CD की लेंथ हमारे पास 10 आ गई है, तो AD हमारे पास कितना आ जाएगा? AD विल बी 5. ओके स्टूडेंट्स, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ स्टूडेंट्स, बिकॉज BCN, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें BCN, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी कैन यूज ट्रिपलेट हियर. CN 6 है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज 10 है, सो BN की लेंथ हमारे पास 8 आ जाएगी. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि CN क्या है. अब CN हमारा मीडियन भी है, तो अगर ये मीडियन है तो ND भी हमारे पास 8 आ जाएगा. ओके, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल BCD, वी कैन इजिली फाइंड इट्स एरिया. हम BCD का एरिया इजिली निकाल सकते हैं क्योंकि हमें हाइट पता है, हाइट 6 है और बेस भी हम निकाल चुके हैं. बेस इज 8 + 8 16. ओके, सो एरिया ऑफ BCD विल बी हाफ इनटू बेस. बेस हमने ये BD को ले लिया, BD की लेंथ है 16 और हाइट हमारी CN हो जाएगी. CN इज द हाइट विच इज 6. तो यहां से BCD का एरिया आ जाएगा विच कम्स आउट टू बी 48. नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट फोकस ऑन दी बिगर ट्राइंगल. ओके, फोकस ऑन दी बिगर ट्राइंगल. अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि अगर मैं इस वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करूं जो बेस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. ओके, बेस को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा. मतलब अगर ये वाला एरिया y है तो ये वाला एरिया 2y होगा. नाउ स्टूडेंट्स, फोकस ऑन दिस लाइन BD. कहने से BD डिवाइड्स AC. ओके, BD डिवाइड्स AC इन द रेशियो ऑफ 1:2. क्योंकि BD ने AC को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ट्राइंगल है, इनके एरिया का रेशियो भी 1:2 होगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी हैव ऑलरेडी फाउंड दैट BCD का एरिया 48 है, तो अगर इसका एरिया 48 है तो इसका एरिया 24 हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम राइटिंग इट हियर. ABD का जो एरिया है, that will be half of BCD, which comes out to be 24. So students, now we have area of triangle ABD as 24. Now students, focus on this length MN. Okay, focus on this length MN. M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. और अभी हम लोगों ने ये फिगर आउट किया था कि CN मीडियन था, CN मीडियन था, N भी हमारा मिड पॉइंट है. N is the midpoint of BD, M is the midpoint of AB. तो अब हम वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई थी. ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 हो जाएगा. नाउ वी नो द एरिया ऑफ ABD as 24, सो कहने से एरिया ऑफ AMN. ओके, एरिया ऑफ AMN, this particular area which I am highlighting, this will be 1/4 of ABD. तो हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 1/4 of 24 which comes out to be 6. तो हमारे पास BMN का एरिया आ गया, that is 6. अब हमें AMN का भी एरिया निकालना है, सो लेट्स जॉइन A and N, है ना? A और N को ज्वाइन कर देते हैं.
Now this is also very easy to figure out. Students, what will be this area? Because this is median, because एम एन इज मीडियन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होगा। तो इस जो बी एम एन का एरिया है वही ए एम एन का एरिया है। तो बी एम एन का एरिया 6 था, तो ए एम एन का एरिया भी 6 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर 6 होगा। Okay, I hope this question is clear to everyone. It's a wonderful question. There are a lot of properties being used here. If you like this, please do share it with your friends and do subscribe our channel. Thank you, everyone.